of you? How are you all today? So again here, we are with the India and France. As you know that our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, he visited France and he visited Nice, and there he introduced himself that nice to have you met you in Nice, and this was a statement which is really remarkable, and it led to a productive approach from the side of India. So here let's start and begin with our first article of 15th June. So basically these are the set of agreements that India has signed, and these are very crucial if you are looking it from the perspective of India France relation. So first is that we have adopted the India France Innovation Roadmap 2030. So what is it about? Have you heard about anything related to AI governance? Yes. So India France Innovation Roadmap 2030 is basically to double the bilateral trade between India and France. So currently it's 16 billion. And second thing that if you read the second statement, we are also focusing on AI governance. So in this you need to understand the meaning of India France bilateral relation and bilateral trade. When we are saying that India and France bilateral trade is $16 billion, what does it mean? So it means that the export and import that Indian exporters in France, exporters are doing, that combines to $16 billion. Okay, and we are planning to double it in the next 5 year, that is up to 2030. So it's a remarkable step from Indian side. Now where you can use it is you should know that recently we have seen that there was near shoring. It was in news. I don't know that if you have heard of this term near shoring or not. तो near shoring का मतलब क्या होता है? Because of the conflicts in at the international levels between different countries, whether it's Israel Lebanon, whether it's Israel Iran America, okay, and Ukraine and Russia. So basically in that situation countries were moving towards their nearby neighbor, and that's why India also approached the Asian countries. But now if you look from the perspective of India is increasing. It's talking about doubling its bilateral trade with the countries such as France, European countries, and this much depends on Strait of Hormuz and Red Sea, Suez Canal. Along with that, if you see the international routes, this is quite difficult. And when India is doing that, so India is basically giving a meaning to the world combined with France, that we should move ahead of this conflict, and maybe we should start a new chapter in the international relation, because the economies of the world are hugely disrupted by the conflicts which are there. And नियर शोरिंग का मतलब है कि नियर बाय कंट्रीज के साथ ट्रेड करना, बिकॉज द ट्रेड रूट्स आर डिसरप्टेड. अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ पिछले हमने इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी देखी थी. I hope you remember that countries are moving to those and trading with those country with they have strategic interest, and they are using trade as a weapon which should not be there. Along with that हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि when there was Pokhara test, then also India supported us. India has been there since the starting. In 2024 we invited Biden to come on the Republic Day celebration in India, where he refused, and France took a step ahead, and it came and showed up. So basically when we are engaging with France, it's a different level, because we always had been in a situation where France has always supported in India. So when we talks about that who are the friend of India in Europe, so we can definitely call that it France. But as it international relation, so international relation much lies in the domain of interest of the country. So what are the interests that we have fulfilled by visiting France, that also crucial. So we are going to look on all these points as quickly as possible, and you please be with me during this whole discussion, and put and subscribe to my channel for more updates on international relation. तो शुरू करते हैं इसको.
लेट्स बिगिन. देखो पहला क्या है कि देयर इज अ जॉइंट इंडिया फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप फोकस ऑन AI गवर्नेंस. पहला हम कवर कर चुके हैं, इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप. सेकेंड इज हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एंड मूविंग टूवर्ड AI गवर्नेंस. व्हाट इज AI गवर्नेंस? AI governance means that when the government bodies, when the executive organ of the government, basically they adopt, AI, artificial intelligence, in order to boost the service that is reaching to the people. And no doubt we cannot deny that AI has become crucial in today's world. And it's time to, move ahead with this development. We can criticize this. Obviously, it's taking up the job, but what is the solution that we have? AI governance अगर हमने adopt नहीं करी तो there are many points where we are going to lag. USA, if you will see in USA AI has been adopted remarkably and it is replacing jobs, right? But when we talk about if about the development of the country or movement of the country, then yes, USA is developing, it's moving ahead. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी यही हुआ था, दैट द वर्ल्ड वाज क्रिटिसाइजिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट सम कंट्री took it as an opportunity and they move ahead. So it's that time only that India needs to move ahead with the AI governance. So this is basically a good step. India France AI working group, they are going to discuss about it, that how they are going to deploy AI. There will be researcher, there will be strategists, there will be strategies which they are going to use. Okay, and what strategy you should use is that you should subscribe to this channel, because for more update you are going to you need to click on the link to subscribe my channel, and you need to click on like and like button and share button as well. So it's a request, rest upon your shoulder. आगे हम बढ़ते हैं कि MOU साइन हुआ है, देखो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग इन एयरोनॉटिक्स एंड एलिड सेक्टर एट NSTI कानपुर. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कल न्यूज़ में थी, दैट वाज जेवार जो एयरपोर्ट है दैट हैज़ स्टार्टेड. अब क्या है कि वी आर डेवलपिंग एयरपोर्ट इन इंडिया. कुछ पहले भी एयरपोर्ट थे, बट अगर हम एयरपोर्ट एंड एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वी एंड द वर्ल्ड इज़ मूविंग अहेड इन दैट. हम भी अपने न्यू एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो जेवार एयरपोर्ट हो, चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, राइट? सो इसके अंदर क्या है कि हमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एयरोनॉटिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें स्किल्स की ज़रूरत है. दैट्स वाई ये इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है. व्हेन वी आर डेवलपिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, in order to run that infrastructure you need skill, and that's why this initiative also makes sense, है ना. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके बाद अगला है कि वी हैव देखो, एक तो हमें यू नीड टू रिमेंबर द नेम NSTI कानपुर, बिकॉज देयर इट हैज़ इनिशिएटेड एंड इट्स ए न्यूज़. So if any question is there related to India-France relationship, NSTI कानपुर has to be there. उसके बाद क्या है कि एक और है ना, कल लाइक आई वॉज वॉचिंग दिस कि हमारे जो ये ना विक्रम मिश्री, ही अनाउंस दैट एयरपोर्ट इन नाइस एंड पेरिस विल नाउ हैव UPI. सो अगर आप इन एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते हो, इफ़ यू आर इनटू ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग दीज एयरपोर्ट, सो you are going to get UPI service. You can instantly use your phone and pay the amount whichever you have to purchase, whatever item you have to purchase at any cost, you can use UPI. मतलब यही है. अच्छा देखो, उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि एक्सपेंडिंग पॉसिबिलिटी है कि पूरे फ्रांस में हम वो कर ले. तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब हमने एक स्टेप लिया है कि हम एयरपोर्ट में पेरिस एंड नाइस के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या पता फ्रांस भी इसको अडॉप्ट कर ले. एंड यू नीड टू टेल मी इन कमेंट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच नाउ आर यूजिंग UPI. ओके, एंड देयर आर मल्टीपल कंट्रीज. तो एक बार आप अपना टाइम लेना, ओके, सर्च ऑनलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर यूजिंग UPI. अदरवाइज यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर बिलो. आपको नीचे आंसर मिल जाएगा, मैं उसमें डाल दूँगी, अपने खुद के कमेंट में डाल दूँगी. इसके बाद लेट्स मूव अहेड दैट. एक और देखो, अब है ना, एक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ना न्यूज़पेपर में पता नहीं चलती. फॉर एग्जाम्पल, इंक्यूबेशन क्या होता है? व्हाट इज़ दिस इंक्यूबेशन? So incubation service is usually provided to the startups. Okay,
इंक्यूबेशन। ये सर्विस जर्नली क्या होती है, ये स्टार्टअप्स को दी जाती है। अब होता क्या है कि वेन एवर अ न्यू फर्म or a new person basically is coming in the market and he is aiming to build something new in the society and he wants to start something, तो एक तरह का स्टार्टअप ऐसा होता है, राइट। तो इस स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, जहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती है, लाइक टॉप क्लास रिसर्चर्स होते हैं एंड यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का यूज़ किया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती है, हाउ यू नीड टू प्रमोट योर ब्रांड, ये सभी चीज़ें ना यहाँ पे सिखाई जाती है इंक्यूबेशंस के अंदर। एंड स्टार्टअप्स जिनको ये इंक्यूबेशन सर्विस मिलती है ना, दे आर एक्चुअली रियली ब्लेस्ड, क्योंकि उनको क्या मिलता है, एक तरह से स्टिमुलेशन मिल जाता है स्टार्टअप एनवायरनमेंट का यहाँ पे। एंड व्हेन दे कम्स अप इन अ मार्केट, या फिर वो जब उनको थोड़ा प्रमोशन भी मिलता है एंड जब वो एंटर करते हैं ना रियली में, दे आर इन अ मच कॉम्पिटिटिव स्टेट। तो incubation facilitates the startups, and that India is a new because it is promoting its startups। आए दिन कोई ना कोई स्टार्टअप हम न्यूज़ के ना देखते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या बोला है कि हमें ना इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं 10, हम 10 ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स जो होंगे, 10 नहीं बनाने वाले, हम 10 स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाने वाले हैं स्टेशन F पेरिस में, स्टेशन F पेरिस, 10 स्टार्टअप के लिए। अब गॉड नोस ये कौन से 10 लकी स्टार्टअप होंगे, और कि फ्रांस तो एक एडवांटेज भी है यूरोप में, राइट। तो उस पोजीशन से अगर हम देखें तो ये स्टार्टअप्स जो है इनको काफ़ी वर्ल्ड क्लास बूस्ट मिलने वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर वहाँ से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं ये 10 स्टार्टअप, सो इट्स ऑल्सो अ इंडिकेशन टू अ वर्ल्ड दैट वी शुड नॉट थिंक अबाउट नियर शोरिंग एंड वी शुड एक्सपेंड। तो उस चीज़ को मतलब हमारे हाथ में ही है, वो कंट्रीज़ के हाथ में, दे लुक इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब देखो आगे ये थोड़ा पॉइंट है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल है ये। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट national de recherche in sciences at technologies du numerique। I'm sorry for my pronunciation, ठीक है, INRIA, if you can pronounce it please let me know that how to pronounce it। तो INRIA, और ये जो है अपना DST है। तो इन्होंने ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ये सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं। सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस, इस वर्ड को इफ़ यू विल ब्रेक तो तुम्हें समझ आएगा कि एक तरह से वर्ल्ड, इंडिया और फ्रांस में जो भी डिजिटल साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही है, डिजिटल मीन्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, सुपर फास्टिंग कंप्यूटर, चिप से रिलेटेड, राइट। तो उसका एक सेंटर बनाने वाले हैं ये। एक तो फ्रांस की कंपनी है दैट इज़ INRIA, और एक है DST। अब है ना क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन दे देंगे DST NRIA एंड दे विल आस्क यू दैट इसमें से कौन से सेंटर इंडिया का, लाइक फुल फॉर्म नहीं आएगी, शॉर्ट फॉर्म आएगी। सो इन दैट सिचुएशन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि हमें लगेगा यार INRIA तो कुछ इंडियन ही लग रहा है, तो वी विल टेक इट, ठीक है, और DST हम नहीं देखेंगे उसको। तो ऐसी चीज़ों के ना नाम थोड़े ना याद रखने पड़ते हैं। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICCR इंडिया चेयर ऑन AI इनोवेशन एंड कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने क्या किया है, ICCR इंडियन चेयर इन्होंने इस्टेब्लिश करी है, ठीक है, कहाँ पे, पेरिस में, पेरिस यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे क्या है कि कौन किस चीज़ की चेयर है, वो AI इनोवेशन एंड कल्चर। तो इंडिया और हम जो है लाइक लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, कि वी आर नाउ व्हाट, इंडिया एंड फ्रांस किस चीज़ में, दे हैव दिस स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 3 तरह की पार्टनरशिप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, नॉर्मल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है। तो एक तरह से हमने यहाँ पे ना सेक्टर्स भी पढ़े थे कि किस किस सेक्टर में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडिया और फ्रांस, है ना। तो उससे रिलेटेड आपको ये इसलिए उससे रिलेटेड ही है कि हमने क्या बोला था कि वी विल कोलैबोरेट इन दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एक उसमें डोमेन ये था। तो AI को अगर हम AI इनोवेशन एंड कल्चर की अगर हम चेयर देखें यूनिवर्सिटी इन पेरिस में,
So it is going to, give opportunity to Indian students to study abroad. It will give them the confidence that yes, we also have a representation in University of Paris. And second चीज़ ये होगी कि it is an indication that we are collaborating, we are special global strategic partners, right? आगे देखो, अभी ये ना एक है ना, देखो जब भी कोई हेल्थ या फिर मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी एग्रीमेंट होता है ना, उसे कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ किसके बीच में साइन हुआ है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ये है हेल्थ डाटा हब ऑफ फ्रांस। उसके अलावा देयर इज़ हाई सेटिंग अप ऑफ हाई लेवल मैकेनिज्म फॉर रियलाइजिंग द ग्लोबल डबलिंग बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर, बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही रिपीटेड पॉइंट है। तो बट ये कह रहे हैं कि हाई लेवल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हमें ये बायलैटरल ट्रेड को डबल करने के लिए। $16 बिलियन का अभी हमारा करंट बायलैटरल ट्रेड है, उसको डबल करेंगे हम, मतलब उसको डबल करेंगे अगले 5 साल में, मतलब 2030 तक। ओके उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसका इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन कॉर्पोरेशन ऑन रेलवे एंड हाई स्पीड रेलवे डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट। इसके ऊपर क्या बोला इन्होंने कि हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे हमारी इंटेंट, हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे रेलवेज़ के अंदर और हाई स्पीड रेलवे डेवलपमेंट के अंदर इन इंडिया, है ना। तो इंडिया के अंदर हाई स्पीड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर दोज हु ट्रेवल अ लॉट, जो ना। उसके अलावा देखो आज के ज़माने में ना, लाइक इफ़ यू आर बिल्डिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड आप रेलवे बना रहे हो, तो व्हाट इज़ द मीनिंग दैट यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं अभी, वी हैव सीन फ्यूल जो हमारा है, ऑयल जो है, पेट्रोल जो है, उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं एक तरीके से। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बना रहे हो, लाइक रेलवे वगैरह बना रहे हो, एंड स्पेशली जब आप ये भी बोल रहे हो, लाइक हमने पढ़ा था ना पिछले साल, हमने ये पढ़ा था कि जो रुस्तम है इट्स एन रशियन कंपनी, और जो हमारा जो इंडियन रेलवे है इट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट कि कुछ 4 रेलवेज पे दे आर गोइंग टू बूस्ट दैट विद द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल से जो एनर्जी बनती है उसका यूज़ करके दे वर अबाउट दे आर गोइंग टू बूस्ट। जिसमें से कि ऋषिकेश वाला एक लाइन, कनेक्टिविटी लाइन भी है। देयर आर 4, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द रेलवे लाइन एग्जैक्टली, बट इफ़ द नेम विल कम आई कैन ईजीली रिकॉग्नाइज, ये तो है। तो अभी क्या है कि इट्स नॉट कमिंग इन माई माइंड, नहीं आ रहा यार, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो बाद में बताऊँगी मैं उसके बारे में, नीचे में लिख दूँगी कमेंट में। तो इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन सेंटर जो है 10 सेंटर का हम पढ़ चुके हैं। रेलवे के बारे में हमें समझ आया कि इट्स इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे कनेक्टिविटी ऐसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉपुलेशन इंडिया कितनी बढ़ गई है, एंड दे आर ट्रैवलिंग अ लॉट यूजिंग देयर व्हीकल्स, इट्स लीडिंग टू द एमिशन एंड ऑल। एंड जहाँ पे अगर हम रेलवे की बात करें, इफ़ द रेलवे इज़ मूविंग इफ़ इट इज़ गोइंग टू यूज़ द रिन्यूएबल एनर्जी, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव पर्सनली। क्यों, वाई आई एम सपोर्टिंग इट? यार देखो एक चीज़ है ना, आपको शायद पता नहीं होगी, हमारे यहाँ पे ना रेलवे जो है, रेलवे क्या करता है कि इसका जो सरप्लस आता है ना फ्राइट के उससे सप्लाई से, फ्राइट क्या होता है, फ्राइट इज़ गुड्स एंड जो हम सप्लाई करते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, जो पैसेंजर को जो सब्सिडी देती है ना, उसको कंपेल करने में, मतलब कंपेंसेट करने में यूज़ कर लेते हैं। एंड अगर रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर की ट्रैवलिंग कॉस्ट है ना, उस पर वो सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल खर्चा तो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं इस आइडिया के सपोर्ट में हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार है ना आराम से इस चीज़ को समझो। जैसे है ना रेलवे, ठीक है, ये अपना कोई पर्सन है, ठीक है, एंड दिस इज़, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ये हमारी रेलवे है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको है ना, हमने यहाँ पे देखा है ना कई बार यहाँ पे गुड सप्लाई होते हैं, है ना, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे क्या होता है, सपोज इसमें एप्पल जा रहा है, तो द पर्सन बेसिकली ही सेल्स एप्पल, तो इसने एप्पल भेजे, नाउ ही विल पे सम मनी टू द रेलवे। और एक ट्रेन हमें पता है कि कुछ ट्रेन ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है, तो लोग जहाँ पे लोग ट्रेवल करते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे है ना, जो लोग ट्रेवल करते हैं ना, उनको जब वो टिकट खरीदते हैं तो एक्चुअल में वो पूरी कॉस्ट पे नहीं करते, उनको कुछ सब्सिडी मिलती है रेलवे की तरफ से, राइट। और यहाँ पे जो ये एक है ना गैप क्रिएट हो जाता है पेमेंट के अंदर,
तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस वॉइड को, जो ये पैसों का वॉइड का जो वो होता है ना, इसको फिल कौन करता है? ये जो फ्राइट से जो पेमेंट आ रही है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है जो अपना गुड्स बेचते हैं शायद ही ज़्यादा पे कर रहे हैं, है ना। और फिर भी हमारा जो रेलवे है वो डेफिसिट में चलता है। तो यहाँ पे अगर रिन्यूएबल आ जाएगी तो ये जो रेलवे है इसको जो एनर्जी चाहिए ना उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिन्यूएबल है, तो दैट इज़ अ गुड एडवांटेज फॉर इंडिया। आगे चलते हैं। देखो, जर्नल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने अभी साइन किया है इसके साथ, फ्रांस के साथ, ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट कैन बी इट्स अ क्लासिफाइड, मतलब कोई भी कुछ इसके अंदर टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी, डिफेंस, वी एक्चुअली डोंट नो, तभी इन्होंने इनको डिस्क्लोज नहीं करना, इसलिए दे हैव यूज द वर्ड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, और एक्सचेंज करेंगे। तो इट कैन बी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, रिलेटेड टू एनी डेटा जो इंडिया में आ रहा है, राइट। तो जर्नल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, इट्स रिलेटेड टू मोर एंड लेस, इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। उसके बाद देखो, अगेन देयर इज अ लेटर ऑफ इंटेंट, इसरो एंड CNES ने साइन किया है, ठीक है, ऑन कॉपरेशन इन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। CNSC हमें पता है कि हमने ना, वी आर कोलैबोरेटिंग अंडर दी स्पेशल ग्लोबल एग्रीमेंट, जो हमने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है पेरिस के साथ, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट। तो हम पार्टनर्स हैं ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो बेसिकली उसमें क्या है कि हमने ये बोला था कि वी विल कोलैबोरेट इन द डोमेन ऑफ स्पेस। इसरो एंड CNSC हमने पिछली बार भी देखा था, CNSC इज़ दी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांस। तो दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड डू कॉर्पोरेशन इन माइक्रोग्रेविटी। अब ये माइक्रोग्रेविटी क्या होता है? इट वॉज इन अ डिबेटेबल टॉपिक सिंस लास्ट ईयर, पर इस साल थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई है आंसर की के बाद। देखो, जब यू आर डूइंग रिसर्च इन दी माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, देन दैट इज़ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, ओके, एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। इस बार हमने क्या किया है कि हमने मतलब हमारे जो सुधांशु शुक्ला थे, दैट वो स्पेस में गए थे, ओके, एंड वहाँ पे ही डिड रिसर्च, राइट। तो उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में ना, एक है ना सी बियर होता है, यू टेल मी इट्स नेम, कि उनको किसको क्या बोलते हैं, ही डिड रिसर्च ऑन दैट, राइट। तो थोड़ा सा ना ये चीज़ें यू शुड नो इन ऑर्डर टू कनेक्ट कि वेयर इंडिया इज़ मूविंग। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें इंडिया का एम पता चलता है। इफ़ इंडिया इज़ मूविंग ऑन रेलवे, वी शुड थिंक दैट वाई इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड रेलवे। इफ़ इंडिया इज़ देयर इज़ एन हेल्थ एग्रीमेंट, सो वी शुड नो दैट वाई देयर इज़ लेटर ऑफ इंटेंट। व्हाट इज़ लेटर ऑफ इंटेंट, है ना। एक क्वेश्चन तो ये भी निकल के आता है यार यहाँ से कि व्हाट इज़ लेटर ऑफ इंटेंट। हो सकता है अब ये लेटर ऑफ इंटेंट पे पूछ ले कि लेटर ऑफ इंटेंट आजकल इंडिया ने बहुत ज़्यादा साइन करना शुरू किया। ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल कम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस, है ना। पर इसका मतलब क्या है? एक बार इसका मतलब है ना देख लेते हैं, ओके। तो देखो, मैंने ये ना ChatGPT पे साइन किया है, ठीक है, एंड देयर इज़ नो कॉपीराइट, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज़, पहले ही बता दूँ। अब क्या हो रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट को जब कोई साइन करता है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर आर एक्सप्रेसिंग सीरियस इंटेंशन की वो प्रोसीड करना चाहते हैं विद अ पर्पस्ड एक्शन एंड एग्रीमेंट, ओके, कि वो मतलब दे आर एक्नॉलेजिंग दैट दे हैव अ सीरियस इंटेंशन एंड दे आर विलिंग टू कंटिन्यू in some domain in future, or they want to move ahead toward the final agreement. तो letter of intention is not binding। ये क्या इंडिकेट करता है कि हम फाइनल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो अभी क्या है कि वी हैव साइन लेटर ऑफ इंटेंट, किसके साथ हमने साइन किया है? इसरो और CNES जो है स्पेस एजेंसी ने साइन किया लेटर ऑफ इंटेंट दैट दे आर गोइंग टू दे कैन मूव टू अहेड टूवर्ड एग्रीमेंट। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट करी है, किसके अंदर? रेलवे के अंदर हमने ये किया है, और तीसरा हमने मेडिकल के अंदर किया है। सो दिस ऑल इज़ इन दिस आर्टिकल। बाकी ये जो डिटेल्स है ना, आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगी। हमने जो UPI साइन किया है ना, ये 19 एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हैं। तो यू शुड रिमेंबर कि ये तो बेसिकली की आउटकम है 19 एग्रीमेंट साइन में। दिस इज़ ऑल अबाउट इट
एक बार ये भी पढ़ लो, दे कॉल्ड फॉर एन अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, FTA के बारे में इन्होंने बोला है, विच ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बायलेटरल ट्रेड, जिसकी वजह से भी हम इन्वेस्ट करेंगे, बायलेटरल ट्रेड एक्सपेंड होगा हमारा। द लीडर ऑल्सो डिस्कस्ड वे टू एनहेंस द कॉपरेशन इन SME, ठीक है, एविएशन एंड रेलवे सेक्टर। ये पता है ना आपको, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, SME, एविएशन, रेलवे सेक्टर्स। तो you should do a quite research on it. It's a very interesting topic. And India France was in news, and nice is अगर हम लोकेशन की बात करें तो this place, एक इवान, एक पेरिस और नाइस, these are the places in news in this region are in France. तो इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ शॉर्ट, इस रीजन को थोड़े एक्सप्लेन करते हुए, यहाँ की वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड ऑल, मे बी क्वेश्चन कैन कम. Thank you all. Do like, do subscribe, and do share my channel. Okay.